of you. Here we are going to discuss about class 9th and 10th social science project that is guided by CBSE, must be submitted at the end of every year to the school. These are not going to be sent to the CBSE, but these are to be submitted, and on the basis of this project on social sciences, 5 marks is allotted there. If you'll go through then even the new one, that is of 2021, the syllabus, you will find it out that the 5 mark for the project in social sciences are there. I would definitely feel sorry for not having videos in such a long time. But then also from now onwards, we will have every day. I will try my best to have new videos on these particular topics and the subjects, because there are lots of topics, lots of subjects, lots of things that some of the students, those who talked about and they asked for in class 8 and 9 and 10 and 11 and 12 also, not only on the social but in the business, economics and many other fields of study. So I will try my best to discuss gradually before the examination starts. I will try my best to complete each and everything. I will definitely request you to please subscribe my channel so that new notifications can be sent to you. The bell icon must be hit. You must know as early as I upload the new class or new things on my channel. Thank you. We are going to start with this one, the project work. What the CBSE thought of, why this is so that the project work is introduced in class 9th and 10th also, that the need for introducing the project work in social science was being felt by educationists, social scientists, social science teachers, the principals and many others for the very long time period. Because in science, the physics, chemistry, biology, the students are having project work, they were having the project files to be maintained, but in social sciences, people were thinking about, the educationists were thinking about that these things are one of the most important. But then also it was only on the thought process, not on ground. But now many schools had expressed their desire to have projects in social sciences for enhancing the students' understanding of different concepts, principles and generalization inherent in the subject, and also introducing an alternative mode of teaching in classrooms with the purpose to diffuse teaching learning load among teachers and students. It is expected that by introducing project relevant, updated and centered on learning to be. Now this is one concept. लेकिन बहुत जगहों पर यह भी हमने पाया कि लोगों ने यह तक कहा, प्रिंसिपल्स ने, टीचर्स ने, इन लोगों ने यह भी कहा कि नो, वी आर नॉट ओनली अबाउट दिस पर्टिकुलर. लेकिन इससे क्या होगा कि बच्चों को, क्योंकि साइंस जो है एक क्लासरूम सब्जेक्ट है, जबकि हम यहाँ देखते हैं सोशल साइंस एक सोशल बीइंग के साथ है, सोशल इंडिविजुअल्स के साथ है, हम सोसाइटी के साथ वर्क करते हैं. तो कोई भी प्रोजेक्ट जो कि सोशल साइंसेस के ऊपर होगा वह लिविंग इंडिविजुअल्स के ऊपर होगा, हम उस पर काम कर रहे होंगे. तो बच्चों को भी सोसाइटी में कैसे मगअप करना है, सोसाइटी में कैसे मर्ज कर जाना है, बच्चों को यह समझ में आएगा. इसलिए भी सोशल साइंस के ऊपर प्रोजेक्ट एक कंपलसरी आइटम के रूप में लोगों ने मांगा. उसके बाद से प्रोजेक्ट वर्क की रिक्वायरमेंट क्या क्या रखी गई सोशल साइंस के प्रोजेक्ट वर्क में. द प्रोजेक्ट वर्क विल बी ऑफ 5 marks in each class of 9th and 10th. In class 9th, students will have to do 2 projects, for which one should be related to disaster management. Out of the list of the subject is specified, the CBSE had already given in 2005, the subjects are there, the topics are there. आप उसके अलावा भी अपनी टॉपिक जो आपके सब्जेक्ट हैं, सोशल साइंस की बुक है आपके 9th की या 10th की, आप उसमें से किसी पर बना सकते हैं. अभी तो सीबीएसई ने 2020 एंड 21 में सीबीएसई ने पूरा एक अलग से दिया हुआ है कि ये टॉपिक कैसे होगा, वो हम लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. In class 10th, a student will do any one project out of the list of the project is specified. The list of project is only suggestive. The teachers may devise their own project suited to the social, cultural, economic, environmental condition and common hazard of their locality. यही नहीं है कि जो टॉपिक दी गई है बस वही करना है, नहीं, आप उसके बियॉन्ड जा सकते हैं, आप कुछ नया सोच सकते हैं. हमारे टीचर्स, आपके टीचर्स हैं, वो नया एक टॉपिक आपको दे सकते हैं, आपको उस पर बनाना है. आप चाहे तो टीचर से भी बोल सकते हैं कि सर क्या इस टॉपिक पर हम बना सकते हैं. देन इट इज
the preparation and submission of project report at the end of the stipulated term each student will prepare. ये ऐसा नहीं है कि ग्रुप में बनाएंगे, दो चार बच्चों की ग्रुप बनेगी, नहीं, हर बच्चे को they have to prepare and submit her or his project report. Following essentials are required to be fulfilled for its preparation and submission. अभी हम इस पर भी बात करेंगे बाद में. The total length of the project report will be 15 to 20 pages. The report will be handwritten and credit will be awarded to original drawings, illustrations and creative use of material. The project report will be presented in neatly bound simple folder. बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग और कई बच्चों का आप देखेंगे बहुत सारा फूल माला कलरफुल बनाते हैं. प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बहुत नीटली, जितना कम आप उस पर वेस्ट करेंगे टाइम फालतू के काम को करने को, उतना ज़्यादा आप उसके मटेरियल पर डिपेंड कीजिए ना. आप उसमें नई चीज़ें जोड़िए, आप ड्राइंग ओरिजिनल बनाइए, मुकाबले फोटोग्राफ्स लगाने के आप खुद से ड्राइंग बनाइए, आप नई चीज़ों को उसमें इवॉल्व कीजिए, नई चीज़ों को सोचिए, उस पर वक्त लगाइए, मुकाबले फ़ोटो उस पर बनाने के और बहुत सारे फूल पत्तियाँ बनाने के. दीज आर नॉट द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड इन एनी प्रोजेक्ट और एनी प्रोजेक्ट फाइल. आप साइंस के लैब मैनुअल्स में इस तरह कर पाओगे? नहीं, मार्क्स डिडक्ट होते हैं. वो काम यहाँ भी नहीं करनी है. बहुत सिंपल, बहुत सुंदर सा, साफ सुथरा जितना है, जो मटेरियल वहाँ चाहिए, जो फोटोग्राफ चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं. The project report will be developed in sequence. Sequence क्या होगा वो हम अभी डिस्कस करते हैं. Now, the project report will be developed in this sequence. Cover page showing project title, student information, school and year, list of contents, acknowledgement and preface, acknowledging the institutions, offices and libraries visited and person who have helped, introduction, chapters with suitable headings, planning activities to be done during the project, if any is there, conclusion, summary and suggestions of finding, future scope of study, bibliography must be given there. Like suppose that we are talking about the project file, तो project file के सबसे फर्स्ट पेज पर ही जो है प्रोजेक्ट का टाइटल, अपने बारे में, अपने स्कूल के बारे में, किस सेशन का आप जमा कर रहे हो ये आपको बताना चाहिए. उसके बाद आपके लिस्ट ऑफ कंटेंट्स हैं, एक्नॉलेजमेंट है, प्रीफेस आपको लिखना है, एक्नॉलेजिंग इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, लाइब्रेरी, विजिटेड पर्सन, जिसने भी आपकी सहायता की है, पेरेंट्स तक को आपको उसमें थैंक करना चाहिए. फिर आप उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे, कितने चैप्टर्स हैं वो कंटेंट में आप लिखे होंगे, उसके सूटेबल हेडिंग्स आप डालेंगे. प्लानिंग एंड एक्टिविटीज टू बी डन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आपको उसके बारे में बताना होगा. कंक्लूजन एट द एंड ऑफ इट ना, कंक्लूजन आप बताओगे, समरी है, सजेशंस ऑफ फाइंडिंग, फ्यूचर स्कोप इसके क्या है वो आप बताओगे. अगर कोई बाइब्लोग्राफी है, कहाँ कहाँ से डेटा लिया, ये सारी दैट विल बी मस्ट बी देयर. ऑल द फोटोग्राफ एंड स्केचेस शुड बी लेबल्ड एंड रिलेटेड टू देम. जो भी टॉपिक है उसी से रिलेटेड होना चाहिए और उस पर भी लिखा होना चाहिए कि ये फोटोग्राफ किस चीज़ का है. अगर किसी अपेंडिक्स की ज़रूरत है एट द एंड में तो वो भी आप दे सकते हो. एंड एट द एंड द टीचर्स रिपोर्ट. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड देयर. नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं स्कीम ऑफ इवेल्युएशन की. इसमें स्कीम क्या है, क्या इवेल्युएशन का तरीका है, तो वी आर फाइंडिंग इट आउट. द फॉलोइंग आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द स्कीम ऑफ इवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क. The first one, the project will be evaluated internally and continuously. All the concerned social science teachers in consultation with each other should share evaluation of the project. Topics covered by the project work will be included in the examination or test. Question based on the conclusion of the project will be given as a test, oral or written, of 10 minutes duration on any fixed day और एनी वन फिक्स डे आफ्टर द सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट के बेसिस पर जो है कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, हो सकता है आपका वाइवा भी लिया जाए टीचर के द्वारा, ये सारी चीज़ें. अब अगर हम आ जाते हैं 2020 एंड 21 के आसपास, प्रोजेक्ट वर्क जो इस साल CBSE ने अपना पूरा दिया है, तो हम पाते हैं कि एवरी स्टूडेंट हैज़ ए कंपल्सरली अंडरटेक एनी वन प्रोजेक्ट ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक. द टॉपिक्स आर कंज्यूमर अवेयरनेस, सोशल इशूज, कोई भी सोशल इशू आप ले सकते हो, कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर की टॉपिक आप ले सकते हो और इस पर भी आप काम कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक्स आपके नहीं है, यही 3 टॉपिक में आप मल्टीपल चीज़ें हैं. कंज्यूमर अवेयरनेस है, कंज्यूमर अपने कमोडिटीज़ के बारे में, जो कमोडिटी परचेज कर रहा, ऑनलाइन परचेज कर रहा, ऑफलाइन परचेज कर रहा है, वेजिटेबल्स परचेज करता है, इनमें से किसी भी चीज़ पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं. बहुत सारे हमारे सोशल इशूज़ हैं, डाउरी डेथ्स हैं, एसिड अटैक्स हैं, वुमेन टॉर्चर है, ईव टीजिंग है, बहुत सारे हैं. आप एक काउंटिंग नहीं है, आप
अपने घर के आसपास भी देखेंगे तो बहुत सारे जो हैं सोशल इश्यूज हैं जिन पर आप कर सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लगातार पिछले 3-4 सालों से क्लास 6 ऑनवर्ड्स आप पढ़ रहे हैं। इस पर कोई टॉपिक लेकर के आप इस पर पूरा क्रिएट अपना प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं। जो मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार है कि कंटेंट एक्यूरेसी ओरिजिनलिटी एंड एनालिसिस पर 2 मार्क्स मिलेंगे आपके प्रोजेक्ट वर्क में। प्रेजेंटेशन एंड क्रिएटिविटी पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। वाइवा वॉइस जो मैं आपको बोल रहा था उस पर, या कोई 10 मिनट का जो है कोई टेस्ट हो गया उस पर आपका जो होगा उस पर आपको 1 मार्क मिलेंगे। टोटल प्रोजेक्ट इज ऑफ 5 मार्क्स। अब अगर देखें, द प्रोजेक्ट कैरीड आउट बाय द स्टूडेंट्स इन डिफरेंट टॉपिक्स शुड सब्सिक्वेंटली बी शेयर्ड अमंग देमसेल्फ थ्रू इंटरैक्टिव सेशन, एग्जीबिशंस में, पैनल डिस्कशन में, यहां पर भी इस पर डिस्कशन किया जा सकता है। ऑल डॉक्यूमेंट, ये सारी की सारी जो सीबीएसई की गाइडलाइन आपके प्रोजेक्ट के साथ आई है उसका मैं बता रहा हूँ। अभी हम इसके बाद भी थोड़ा सा है, एक छोटा सा हम उस पर भी डिस्कस कर रहे होंगे। ऑल डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू असेसमेंट अंडर दिस एक्टिविटी शुड बी मेटिकुलसली मेंटेन्ड बाय कंसर्न्ड स्कूल। स्कूल आपका रखेगा, इसलिए ये सोचकर मत चलिएगा कि हम इसको वापस भी ले लेंगे और स्कूल हमें वापस कर देगा। आपका जो प्रोजेक्ट है वो परमानेंटली स्कूल की एसेट्स हो जाएंगे, आपकी नहीं रह जाएंगे। इसके बाद अ समरी रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड हाईलाइटिंग ऑब्जेक्टिव्स रियलाइज थ्रू इंडिविजुअल वर्क एंड ग्रुप इंटरेक्शन, कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज, इनोवेटिव आइडियाज जनरेटेड इन द प्रोसेस, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन वाइवा वॉइस, इस पर भी आप बना सकते हो। इट इज टू बी नोटेड हियर बाय ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दैट द प्रोजेक्ट एंड मॉडल्स प्रिपेयर्ड शुड बी मेड फ्रॉम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट विदाउट एनकरिंग टू मच एक्सपेंडिचर। ना खर्च फालतू करेंगे, ना इकोनॉमी को बर्बाद करेंगे, ना इकोलॉजी को बर्बाद करेंगे। दोनों इको में कोई भी चीज बर्बाद नहीं होनी चाहिए। इकोलॉजी अगर बर्बाद होगी तो हमारा फ्यूचर जनरेशन बर्बाद होगा, अगर इकोनॉमी बर्बाद होगी तो आपका फ्यूचर में हो सकता है कहीं पैसे की कोई दिक्कत ना आ जाए। इसलिए एज पर द गाइडलाइन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट एज मच एज इट कैन बी पॉसिबल, हो सका तो पूरी तरह से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होना चाहिए। यहाँ कुछ भी फालतू, कुछ भी इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय करने वाला नहीं होना चाहिए। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी हैंड रिटन बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्फ। कुछ के लिए एक्सक्यूज है, वो ब्लाइंड कैंडिडेट और वो है, वो हैंड रिटन की जगह टाइप दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इट इज अ हैंड रिटन प्रोजेक्ट दैट मस्ट बी सबमिटेड। सीबीएसई ने कहा जो है वो आपकी प्रोजेक्ट के लिए ये 6 बुक हैं जहां से आप अपना प्रोजेक्ट का सारा डेटा ला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये आपके उनके प्रिस्क्राइब बुक्स हैं। इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वॉर 2 हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी इंडिया 2 जियोग्राफी में, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चैप्टर बुक 2 पॉलिटिकल साइंस, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगेन ऑफ क्लास 10, ये सारे आपके क्लास 10th के हैं। टुगेदर टुवर्ड्स अ सेफर इंडिया पार्ट 3, learning outcome at this secondary age, published by, all these are published by NCERT. One is published by CBSE, that is together towards a safer India. बाकी सारी NCERT के द्वारा प्रोड्यूस्ड है। ये ऑलरेडी हमने जो बात कर रहे थे, तो आपके प्रोजेक्ट का मस्ट स्टार्ट फॉर क्लास 10th की हम बात अगर करें, मैं एक एग्जांपल अब दे रहा हूँ कि किस तरह से हमारा पूरा प्रोजेक्ट होगा। तो इट मस्ट कंटेन सोशल साइंस प्रोजेक्ट टॉपिक, कंज्यूमर अवेयरनेस, सोशल इशू एंड सोशल डेवलपमेंट, इन्हीं पर हमारा प्रोजेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं का प्रोजेक्ट का कंटेंट जो है सेकंड पेज पर जो आएगा वो डिजास्टर मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर मिटिगेशन होगा। फर्स्ट पेज पर जब हम ला रहे होंगे तो इनमें से कुछ टॉपिक्स होंगे। आप सेकंड पेज पर जब लाओगे तो आप ये लिखोगे, फर्स्ट पेज पर हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपका नाम, आपके स्कूल का नाम, ये सारा, और जो टॉपिक है वो रहेगा। उसके बाद हम इस पर आए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि डिजास्टर मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर मिटिगेशन, हम ये लिखेंगे पूरा। सेकेंड पेज जब हमारा आगे चलेगा तो हम एक्नॉलेजमेंट देंगे, जो हम आपको बता रहे थे कि हम एक्नॉलेज करेंगे जो भी मेरे को हेल्प किया है उन सबों का। जैसे इन दिस प्रोजेक्ट आई वुड लाइक टू थैंक माई सोशल साइंस टीचर, सपोज दैट इट मी, तो मैं अपने बारे में ही लेता हूँ। इन दिस प्रोजेक्ट आई वुड लाइक टू थैंक माई सोशल साइंस टीचर अभिषेक मिश्रा एज ही गाइडेड मी फॉर प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट। I would also like to thank our principal sir or madam, whosoever it is, who gave me this golden opportunity to showcase our talent. I would also like to thank all my elders as they provided me all the necessary material needed for the project. I would also like to thank my school. Suppose that you, whatsoever the school's name is, that you must mention, not the dash, it must be mentioned, for showing the path of enlightenment and creativity. I would also like to thank my parents for helping me in preparing this project. At the end, your name must be there, that enhances the goodness in this one. The next one is the preface.
जो आपको बोला था, फर्स्ट पेज पर आप, कवर पेज पर आप लिखोगे क्या टॉपिक है, अपना नाम। सेकंड पेज पर आओगे आप अपना टॉपिक फिर लिखोगे। थर्ड पेज पर आओगे आप एक्नॉलेजमेंट दोगे। नेक्स्ट पेज पर आओगे तो आपका प्रीफेस होगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर में, मैंने ये एक एग्जांपल आपको दिया है, बाकी तो मैं डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा प्रोजेक्ट नहीं बनाने जा रहा, लेकिन ये 2-4 पेज हैं जो कहीं भी आप लिखोगे, थोड़ा सा शब्द बदल दोगे, जैसे डिजास्टर ऑर्गेनाइजेशन या डिजास्टर मैनेजमेंट है, वहाँ सोशल वेलफेयर और सोशल डिपार्टमेंट आप लिख सकते हो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की जगह सोशल वेलफेयर लिख सकते हो। शुड बी टू इम्प्लीमेंट प्लान्स विद सम क्राइटेरिया, gives information, data, development plan, and disaster organization that can enable us to understand the criteria and aspect of disaster management. As we know, disasters are likely to happen at any place and time without giving any warning. We should be always prepared so that in case of disaster, we can easily handle the disaster in such a way so that minimum loss of life can be possible. And if we can save it, then the objective of disaster management is achieved. It helps us to meet basic requirements like first aid and so on. Analyze information about hazards, vulnerability, and development to identify opportunity where prevention, mitigation, and preparedness measures might be applied so that its risk can be minimized and on time and effective response can be possible. So that risk can be, there must not be it's a printing mistake, I'm sorry for it. Determine the role of the various agencies in disaster management program and activities. This project is tried to be written in simple language so that everybody can understand the objective. This is what the preface of your project must be. Then comes the content. Next page, fifth page, there it started with the content. Content is the first page, preface. There must be a certificate that I will have that one at the end of it, or you can introduce your own certificate. Okay, this is to certify that Mr. X had solely prepared this project. बस हो गया, एंड द सिग्नेचर ऑफ द टीचर, उतना काफ़ी है। नेक्स्ट वन इज योर इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। जो भी आप टॉपिक पर बना रहे हो उसका इंट्रोडक्शन आप देंगे। जैसे मान लीजिए मेरा टॉपिक, मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट का एग्जांपल लिया हुआ था, तो मैंने डाला नेचुरल डिजास्टर कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ डिजास्टर कितने होते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडियाज़, जो आइडियाज़ उसको प्रिवेंट करने में आएंगे उनके लिए हैं। जैसे प्रिवेंशन ऑफ लॉस इन डिजास्टर मैनेजमेंट, जो डिजास्टर मैनेजमेंट में प्रिवेंशन कर सकते हैं लॉसेस को बचाने के लिए, हम वो डाल सकते हैं। मिटिगेशन या प्रिवेंशन, किसी तरह का कोई डिजास्टर होने वाला है, हम उसके लिए पहले से कैसे उसको मिटिगेट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। प्रिपेयर्डनेस, अब जैसे आप बोलोगे कि सर वॉल्केनिक इरप्शन होना है तो उसको बचा तो नहीं सकते, लेकिन हम उसके आधार पे ये सिस्टम तो तैयार कर सकते हैं कि हाउ द पीपल कैन बी इवैक्यूएटेड इन दैट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो हम इस तरह की चीज़ों को तैयार करते हैं, उसे ही हम प्रिवेंशन या मिटिगेशन कह रहे हैं। प्रिपेयर्डनेस, कोई ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे। अगर आप बहुत सारी मूवीज़ हैं जिनको आप देखोगे तो आप पाओगे कि कई जगह पर फॉल्ट्स हैं, ज़मीन के अंदर फॉल्ट हैं, जिसके कारण वॉल्केनिक नहीं बल्कि अर्थक्वेक्स आते हैं। अमेरिका का, आई जस्ट डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द मूवी, जहाँ पर जो है हॉलीवुड और इनके नीचे एक फॉल्ट है जिसके कारण वहाँ लगातार जो है अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, और उस अर्थक्वेक के कारण जो प्रॉब्लम उनको हो रही है उसके लिए वो तैयार नहीं थे, प्रिपेयर्डनेस नहीं था, जिसके कारण बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो दिस मस्ट नॉट बी इन आवर केस ऑल्सो। उत्तराखंड में जो केदारनाथ और बद्रीनाथ के आसपास, केदारनाथ के आसपास जो पूरा कैटास्ट्रॉफी हुई थी, उससे बचने का भी तरीका था अगर लोगों को पहले से प्रिपेयर्डनेस रहा होता तो। रिस्पॉन्स टाइम, कई जगहों पर तो रिस्पॉन्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कोई प्रॉब्लम आई, किसी तरह का कोई डिजास्टर हुआ, आप रिस्पॉन्सिवनेस कितनी तेजी से रखते हो, कितनी जल्दी इस पर रिस्पॉन्स करते हो, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन द कंक्लूजन ऑफ इट, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का कंक्लूजन क्या हुआ, बाइब्लोग्राफी क्या है, टीचर का रिपोर्ट अगर कुछ है तो वो आप लगाइए, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बॉडी ऑफ द प्रोजेक्ट में आप जरूर जो है, रेस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मस्ट कंटेन पिक्चर ऑन द टॉपिक यू आर राइटिंग योर प्रोजेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक कंटेंट मस्ट बी रिटन। ये बेसिक्स हैं जो कि आपके पूरे के पूरे बॉडी का मतलब है। इसके बाद कंटेंट के बाद जब आप इंट्रोडक्शन करते हो से लेकर ये जो आपने कंटेंट में टॉपिक डाला हुआ है, इन टॉपिक्स को हम बॉडी ऑफ द प्रोजेक्ट कह रहे हैं। और ये पूरा का पूरा में ये दो इंपॉर्टेंट है
कि पूरे पिक्चर जो टॉपिक है उसी पर होने चाहिए। आप टॉपिक बनाए हो डिजास्टर मैनेजमेंट और पिक्चर्स डाल रहे हो आप प्रोडक्ट्स के, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बना रहे हो डिजास्टर मैनेजमेंट पर और अर्थ का ग्लोब का फोटो लगा दो, नहीं होना चाहिए। दीज आर नॉट एक्सेप्टेड। रेलिवेंट थिंग्स मस्ट बी देयर, ये जरूरी है। एंड दिस इज द एंड ऑफ इट। जहां टीचर का रिपोर्ट आप डालोगे, इन द गिवन परफॉर्मा विल बी अटैच्ड एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट। प्रोजेक्ट का इवेल्युएशन परफॉर्मा, स्कूल का नाम और ये सारा कुछ एट द एंड आप डालोगे। ये आपके टीचर का रिपोर्ट है। These all the things are important in completing your project. This is one of the most. If you feel any type of problem in understanding or any topic you want that I must check over it, तो प्लीज आप मुझे जरूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल डेफिनेटली सी टू इट। इफ देयर कैन बी एनी टाइप ऑफ हेल्प दैट आई कैन डू, आई विल डेफिनेटली डू। Thank you all of you for watching my channel. Thank you.